اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله أن تصلي على محمد وآله الأطهار. ولی اللہ الأعظم بقیت اللہ الأعظم امید اولین و آخرین نقطۂ انتظار انبیاء اولیاء ائمہ و معصومین نجات دہندہ عالمین آپ کے اور میرے کریم مولا حضرت صاحب العصر والزمان کی ظہور میں تعجیل کے لیے توجہ سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اللہ ہمارے مولا کو ہم پہ راضی فرما دے۔ اس ماہ مبارک کی باقی بچی ہوئی ساعات، لمحات، ایام، راتوں کو ہمیں اپنے مولا کے ساتھ نصیب فرما دے۔ ہم سب کو اپنے مولا کا دیدار نصیب فرما دے۔ ہمیں ویسے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جیسے میرا مولا صاحب الزمان چاہتے ہیں۔ یہ تمام عظیم مومنین صاحبان ولا عزا، اللہ تجھے واسطہ صاحب الزمان کا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ماہ رمضان کی سب سے زیادہ برکات، رحمت اور مغفرت ہمیں نصیب فرما۔ جو کچھ تو نے اپنے اولیاء کو عطا فرمایا ہے ہم عزاداروں کو نصیب فرما۔ امیدوار ہوں بہترین زندگی کے لمحات آپ گزار رہے ہیں، اور اس امید کو مزید بڑھانے کے لیے صاحب الزمان پر ایک صلوات ہدیہ فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مہینہ اللہ کا بھی مہینہ ہے، رسول خدا کا بھی مہینہ ہے، مولا علی کا بھی مہینہ ہے، سب ائمہ خدا اہل بیت علیہ السلام کا مہینہ ہے۔ اسی طرح یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے نا ایسا؟ اس کا مہینہ ہے قرآن کا۔ انزلت فیہ القرآن، آپ نے میرے مالک اسی ماہ مبارک رمضان میں قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ تو تھوڑی سی عرفان قرآن کی ایک تجلی ہدیہ کر دو۔ آج کی مجلس اسی پر رہ جائے، اور اس کے ساتھ دیگر معارف اور مطالب آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا۔ قرآن کو ہم نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ قرآن کو ہم نہیں پہچانیں گے تو کون پہچانے گا؟ وہ ہمارا امام ہے جس کا سر مبارک بغیر بدن کے قرآن پڑھ رہا تھا، وہ ہمارا ہی مولا حسین ہے نا۔ تو ہمیں قرآن سے لگاؤ زیادہ ہی ہونا ہے، اور ہے بھی صحیح، نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ میں ایک بات بالکل کلیئر کر دوں بغیر کسی تمہید کے مولانا، بغیر تمہید، سیدھا ڈائریکٹ، بڑا واضح، اور وہ یہ کہہ رہا ہوں، اگر تم نے ان لوگوں کو کہ جو میرے مولا کی ولایت نہیں رکھتے، شب و روز قرآن پڑھتے ہیں، حافظ قرآن ہیں، قاری قرآن ہیں،
ختم قرآن کر رہے ہیں، حمائل قرآن کی یہاں پر بولو باندھی ہوئی ہے، اور ان کو دیکھ کر آپ کہیں کہ وہ تو قرآن کے اوپر بڑا کام کر رہے ہیں اور ہم کام نہیں کر رہے، دنیا کے غلط ترین جملات میں سے غلط ترین مطلب ہے۔ میری بات سمجھیں آپ، یہ غلط ترین مطلب ہے بھائی، اس وجہ سے کہ اگر یہ اس طرح قرآن پڑھنا، مجھے دیکھو اس طرح تلاوت کرنا، اس طرح حفظ کرنا، اس طرح قاری بننا، اس طرح یاد کرنا بغیر میرے مولا کی ولایت کے ہو تو پھر تو سب سے بڑے قاری وہی نہیں تھے جو جنگ صفین میں میرے مولا علی کے مقابلے میں سروں پر قرآن باندھ کے آئے تھے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں یار، میں نے بغیر تمہید کی بات شروع کر دی ہے، آپ پر اعتماد کرتے ہوئے کہ آپ صاحبان علم و فراست و دیانت ہیں، بات میری لے رہے ہیں نا، بات میری پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ یہ کنسپٹ ختم ہو جانا چاہیے یا نہیں آج میرے سامعین کے ذہنوں میں؟ یہ کنسپٹ ختم، ہم اپنی بات کریں گے، ہمیں پڑھنا چاہیے، میں علیحدہ کروں گا، میں پہلے بھی کہہ رہا تھا پھر بھی کہوں گا، لیکن اس وجہ سے نہیں جی وہ بڑے اہل قرآن ہیں تو ہمیں بھی اہل قرآن ہونا چاہیے، وہ اہل قرآن نہیں ہے۔ بھائی توجہ کرو، اہل قرآن فقط آپ ہیں، میں لفظ بدل رہا ہوں، اہل قرآن فقط وہی ہے کہ جو قرآن سے پہلے جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے ان پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، جو اہل بیت قرآن ہے پہلے ان پہ ایمان لے آؤ پھر قرآن پہ ایمان بنتا ہے۔ اہل بیت قرآن سے تو بغض رکھتے ہو، اب قرآن سے تم کیا لیا کرو گے؟ بھئی توجہ آپ فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے؟ یہ کون سا یہ نظام تو ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ اگر میرا رسول خاتم المرسلین جاتے ہوئے فقط قرآن چھوڑ گئے ہوتے تو پھر بھی کوئی بات تھی، وہ تو فرما رہے ہیں میں قرآن کے ساتھ عبرت چھوڑ رہا ہوں، تو جنہوں نے اس وقت عبرت کو نہ مانا اور حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کیا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اس کے پیروکار اگر قرآن کو دل کے اندر بھی اتار لے قرآن نہیں آئے گا۔ کچھ میں کہنا چاہتا ہوں بھئی یہ باتیں مجھے اس لیے کہنا پڑ رہی ہے کہ میں آخر ورلڈ میں جاتا ہوں، آپ جیسے مومنین کے لیے مشرق مغرب ہر جگہ پہ ہم جاتے ہیں، علماء غیر علماء میں جاتے ہیں، بس اوقات ہمارے جوان، بس اوقات ہمارے بزرگ اس گمراہی میں گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ تو بڑے اہل قرآن ہیں، وہ تو بڑے فلان ہیں، وہ تو بڑے قاری ہیں، وہ تو بڑے حافظ ہیں، کیا ماشاءاللہ کیا بھئی کیا ہے؟ اگر اسی سے دین آتا ہے چلے جاؤ ان کے دین پر جو حسبنا کتاب اللہ کہتے تھے، غور ہی نہیں کر رہے میری بات پر۔ بنو امیہ کو بڑا قرآن آتا تھا، بنو عباس کو بڑا قرآن آتا تھا، اور لوگوں کو بڑا قرآن آتا تھا۔ قرآن کا یاد کرنا کوئی معیار نہیں ہے، قرآن سے پہلے اہل قرآن یعنی اہل بیت قرآن کو ماننا ضروری ہے۔ آپ میرا جملہ نہیں لے رہے، آپ نے ابھی تک صرف سنا ہے اہل بیت محمد، میں ساتھ کہہ رہا ہوں اہل بیت قرآن، کیوں اہل بیت محمد ہی تو اہل بیت قرآن ہوتے ہیں۔ اصل محمد اور قرآن میں فرق نہیں ہے، یہ قرآن صامت ہمارے پاس، اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پہچانا نہیں، ہم نے پہچانا نہیں ہے قرآن کو، ہم نے پہچانا، وہ ہماری اپنے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا، کریں گے، لیکن ان سے مرعوب ہو کر نہیں، ان سے متاثر ہو کر نہیں۔ انہوں نے تو حسبنا کتاب اللہ بنایا کہ بلا بیڑا غرق کر دیا قرآن کا، اور اس کے دو بڑے واقعات ہیں۔ کتنے بڑے واقعات ہیں؟ دو۔ ایک اسی سقیفہ میں کیا، کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کتاب کہتے، عطرت اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور جو عطرت کا مرکز تھا، رسول کا جگر تھا، اس عصمت اللہ الکبریٰ کو قرآن حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگا کر اسے ضربے لگانے لگ گئے، اسے 18 سال کے سن میں شہید کر دیا۔ اب ان کو کہو گے یہ اہل قرآن ہے، بھلے قرآن حفظ کرتے رہیں، میں ابھی روایت پڑھوں گا، آپ میرا ساتھ دیں گے۔ توجہ ہے اب صاحبان کی یا نہیں؟ یہ پہلا ہوا، یہ بڑا واقعہ ہمیشہ ہوتا رہا۔ میں دو بڑے واقعوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں عادل بھائی، ایک یہ ہوا، دوسرا کیا؟ جنگ صفین میں
नाते के कुरान लड़ रहे हैं, मैं देखता हूँ बंदा कौन सा अली वाला हो और फिर जमीन पे बैठे, मुझे देखे सही, सुने सही, समझे सही, जो गुंगा है ना अली की विलायत में बोलेगा जुमला, वो मैं हजा करने लगा हूँ आपको रिवायत का। बड़ी तवज्जो करो, बस फकत आपके दिलों तक और समाज के जरिए आपके कल्ब तक मैं मतलब पहुंचा सकूं। जंग सिफीन जानते हो ना, लड़ रही थी, जहां तक नहीं जानते हो मुझे बता देना, ये सारी चीजें आप जानते हैं। जंग सिफीन जानते हो, उसमें जंग हो रही थी, जब उस शाम वाले का लश्कर क्या होने लगा, पिस्पा होने लगा, खारने लगा, खत्म होने लगा, तो उन्होंने एक चाल चली अपने एक शैतान के बच्चे के जरिए से, उम्र आस के जरिए से। उन्होंने कहा और कोई चारा नहीं है कि तुम जितने जिन के पास कुरान है उनको सरों पे बांधो। तवज्जो करना, मैं कुछ कहना चाहता हूं, उसको सरों पे बांधो, सरों पे बांध के अली के लश्कर के सामने जाओ। उसने कहा अली लड़ेगा, उसका लश्कर नहीं लड़ेगा। हाय 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 हाय। मैं कुछ जुमला कहना चाहता हूं, यानी उसको भी पता था अली के लश्कर में भी कोई है जो अभी अली को वैसा नहीं मानते जैसे अल्लाह ने अली को बनाया है। हाय 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 हाय। नहीं तवज्जो, आप कबला मौला मेरे जुमलों पर फरमा रहे हैं। उनको भी यकीन था कि ऐसे लोग हैं, ये हमारे कुरान सामित को देखकर ना ये उसे छोड़ देंगे, और वो इसमें कामयाब हुए। यही किया। अब मेरी बात समझे कि अगर मारिफत इमामत ना हो तो कितना बड़ा नुकसान है, कितना बड़ा नुकसान है। खुद अली मौला उसमें मौजूद है। अब जनाब वो कुरान पढ़ के आ गए, कुरान बांध के आ गए सरों के ऊपर, यसीनों के ऊपर, बाद में सरों पे बांधे हुए थे, इस तरह बांध के आगे लड़ने आ गए। यानी कुरान को ढाल बचाया अपने आप को बचाने की। अब अली की अक्सरियत सिवाय मालिक अश्तर जैसे के चंद आदमियों के, सब के सब या अली हम तो इनसे नहीं लड़ते, गौर नहीं कर रहे मेरी बात, या अली हम तो इनसे नहीं लड़ते। क्यों? कुरान बांधा हुआ है। मुझे देखना, खुदारा मेरा जुमला सुनना, जंग सिफीन पूरी जिंदगी पढ़ी सुनी होगी, मैं आपको उसका निचोड़ करीम निकाल कर दे रहा हूं, बड़ा तवज्जो से लेना। तो कहा क्या कि यार हम तो इनसे नहीं लड़ते। क्यों? कहा इन्होंने कुरान बांधा हुआ है सर पे, तो हम तो इनके साथ लड़ेंगे, कुरान के साथ तो नहीं लड़ेंगे। गौर ही नहीं किया, गौर ही नहीं फरमाया आप लोगों ने। यानी कितना इनके शैतान ने इनको वसवसा डाला, और अब क्या हो गया, क्या हुआ भाई? कहा हम आपके दुश्मनों से लड़ेंगे, वो ठीक है, लेकिन इन कुरान वालों से तो नहीं लड़ेंगे। यानी जो सर पे कुरान बांध ले वो अहले कुरान हो जाता है इनके नजदीक, हम इनके साथ नहीं लड़ेंगे। अब मेरे मौला के जुमले सुनिए और लुत्फ लीजिए। मौला फरमाते हैं, देखो उनके सरों पे कुरान सामित है, मैं खुद कुरान नाते हाय हाय हाय। हमने नहीं पहचाना ना अपने मौला को, हमने मौला अली को नहीं पहचाना ना। हम मानते हैं लेकिन जो पहचानना चाहिए सलमान व अबूजर वाले रास्ते पे नहीं चले। फरमाते हैं वो सामित कुरान है, मैं खुद कुरान नाते खड़ा हूं, मैं हुक्म दे रहा हूं लड़ो। अब तवज्जो कीजिएगा, जब ये न गए अमीर ने फरमाया खड़ो फिर मुझे देखो, मुझे देखिएगा, मैं रिवायत करे माना निकाल कर आपको हज कर रहा हूं। अली मौला ने क्या किया, अपनी तलवार को नियाम से निकाला, बिला तस्वीर सब बंदे मुझे देखे। अपने दस्ते मुबारक में इस दाएं हाथ में तलवार थी और बाएं हाथ का इशारा करते थे। जो भी उस लश्कर शाम का बंदा कुरान को सर पे बांध के आता था, अली एक हाथ दराज करते थे, कुरान परवाज करके अली के हाथ पे आता था, अली उसे पिटार कर देता था। फरमाते थे सामित के जरिए से नाते से नहीं लड़ सकते। कोई माना है? मैं राजी, आप पे मौला राजी रहे। बस ये मेरी बात सुनो, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। ये दूसरा बड़ा वाकया हुआ, ये धोखा है तो मान गए ना, आजा समझ में आ गई ना कि कुरान सामित भी जाता उधर ही है जिधर नाते को हो, और नाते का है अली। अली से बुग़्ज़ रख के लाख तुम तिलावत और हिफ्ज़ कुरान करो, कुरान नहीं आएगा, लानतें आएगी। चलो चलो चलो, मुझे देखो मुझे देखो मुझे देखो, मैं ऐसा जुमला कहने वाला बंदे ही नहीं हूं कि अपनी तरफ से कहूं। आप कहेंगे मैं लानत ऐसे कह गया, रिवायात का अंबार है, हदिया कर रहा हूं। मेरे सादिक मौला फरमाते हैं हर कारी ये कुरान को सवाब नहीं मिलता। असहाब ने कहा अच्छा मौला, फरमाया हर आदमी कुरान को सवाब नहीं मिलता। अच्छा मौला, हैरान होते गए। मेरे मौला ने जुमला कहा, रब्बताओ लिल कुरान वयतलुल कुरान वल कुरान यलअनुहु। बहुत सारे कारियाने कुरान है जो कुरान की तिलावत करते हैं, आयतें उठ उठ के लानतें करती है। अब समझ में आया? अब मेरा जुमला फिर ठीक हो गया ना, अब तो वाज़ेह हो गया कि इनके हिफ्ज़ कुरान को देखकर मरऊब नहीं होना,
रुअब में नहीं आना, मुतासिर नहीं होना, इम्प्रेशर नहीं होना आपने उनके कुरान। वो कौन है? वो हस्बुना किताबुल्लाह के मानने वाले हैं और सिफीन वालों की औलाद है। गौर ही नहीं किया। फिर अब मैं ऐसे कह देता हूं, अगर आज कोई बुग़्ज़ अली रखकर हाफिज कुरान हो, यानी कुरान को रटा हुआ हो, याद कर लो वो सिफीन जैसे, लश्कर शाम जैसे कारी है, मालिक अस्तर जैसे नहीं है। अब समझो आपने फरमा लिया या नहीं? तो बस इसलिए कह रहा हूं, कुरान को तो पढ़ना ही हमने है। अल्लाह पाक की कसम, जब आप कुरान की तिलावत करते हैं ना मोमिन, आप यानी साहिब विला, आप यानी अज़ादार, आप यानी साहिबान विलायत, जब आप कुरान की तिलावत करते हैं ना, कुरान खुश होता है। ओए होए होए, आयात कुरान खुशहाल होती है। हमें अहल पढ़ रहा है, हमें वो तिलावत कर रहा है जो पाक है, जिसकी तीनत पाक है, जिसका कल्ब पाक है, जिसका खमीर पाक है, जो हलाल ज़ादा है। गौर ही नहीं किया मेरी बात के ऊपर। यानी हलाल ज़ादा अल्लाह की आयतें पढ़ता है तो आयतें खुश होती है। अल्लाह पाक की कसम, मुबग़िज़ अली विलायत का मुनकिर कुरान पढ़े ना, आयतों को तकलीफ होती है। वो पढ़ रहा है जो हलाली भी नहीं है। अब तो समझ आ गई। मैं 2 घंटे की तकरीर को निचोड़ दिया है आपके लिए, और एक दिल की मेरी कैफियत थी जिसको मैंने निकाल कर आपको दे दिया है। आपने ले लिया है या नहीं लिया? बोलो, ले लिया है? रहेगा ये बात, बस उनसे मरूब नहीं होना। हम है कुरान पढ़ने वाले, हमें ही कुरान पढ़ना चाहिए। हम उनको मानते हैं जो अहले कुरान है। अल्लाह पाक की कसम, अहले बैत में, मुझे देखना, अहले बैत में 14 में और कुरान में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है। कसम बखुदा बड़ी 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 दियानत और बड़ी हिफाजत और बड़ी रियायत और बड़ी जमानत के साथ कह रहा हूं, यानी आयात और रिवायात का जिम्मेदार बन के आपको हदिया कर रहा हूं। मैं कोई जुमला खिताबत में नहीं कहता जिसके पीछे इल्म ना हो, जिसके पीछे आयत ना हो, तफक्को ना हो, फकाहत ना हो। ऐसा जुमला मैंने कभी नहीं कहा दुनिया अपनी जिंदगी में मिंबर के ऊपर। जुमला सुनिएगा मेरा, मैं क्या कह रहा हूं आपको। ये कुरान, और कुरान है ही अहले बैत के पास, वो ऐने कुरान है, कोई फर्क नहीं है। मैं यही कह रहा हूं ना। अच्छा, मैं बहुत सारी रिवायात को लेकर उनका खुलासा, उनका लुब, उनका मक्खन निकाल के एक खुलासा आपको हदिया करता हूं। मुझे देखना, मेरे सरकार मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कुरान हो या अहले बैत, इनसे पहले ऊपर आओ। ऊपर कौन है? अल्लाह, वही ज़ात वाजिब है और उसके अलावा कुछ नहीं। उसने चाहा कि कुछ अपना ज़हूर करूं, मैं कुछ अपना नुज़ूल करूं, मैं मुझसे कुछ जाहिर हो, तो उसकी ज़ात से एक नूर जाहिर हुआ। मुझे देखना, एक नूर जाहिर हुआ, वो जाहिर होकर नाजिल होना शुरू हुआ, तनजील शुरू हुई, नाजिल होता हुआ आया, नाजिल होता हुआ आया, नाजिल होता हुआ आया था। सारी मंजिलें पढ़ूं तो 10 दिन लग जाएंगे। मैं इसी आखिरी जुमला कहना चाहता हूं, इसी तरह सारा नाजिल होता हुआ आया, हर नाजिल होता हुआ आया। जब दुनिया में आया, नूर एक था। किबला मौलाना, रिवायात को देखे मैं किस तरह बयान कर रहा हूं। क्या वो नूर एक था किसका नूर? अल्लाह का नूर था, एक नूर था भी अल्लाह का। नाज़िल होता हुआ आया, नाज़िल होता हुआ आया, तंजील होता हुआ आया, तंजील होता हुआ आया। जब दुनिया में आया, वही एक नूर 2 शक्लों में बदल गया। जब उस अल्लाह ने चाहा उसी अपने नूर को पैकर में बदले तो 14 बन गए, हरफों में बदला तो 34 से 12 कुरान बन गया। अब तो समझ आया है आपको। लिहाजा फरमाया लई यफ्तारिका, ये कुरान और हदीस से पढ़ रहा हूं, लई यफ्तारिका, ये दोनों आपस से जुदा नहीं होंगे हत्ता यारेदा अलैयल हौद। नबी फरमाते हैं जब हौद कौसर पे ये आएंगे, कुरान अहले बैत के साथ होगा, अहले बैत कुरान के साथ आएगा, यानी कभी जुदा नहीं होंगे। ये हमारी हिदायत के लिए हो गया। बाबा असल हादी कौन था? अल्लाह। अल्लाह ने अपनी हिदायत कैसे भेजी? अपने नूर से। तौहीद सुनो, मैं कैसी तौहीद सुना रहा हूं। हादी कौन है? अल्लाह। उसने अपनी हिदायत के लिए अपना नूर भेजा। अब अपने नूर को क्या किया? एक नूर को एक जलवे में किताब बना दिया, उसी नूर को दूसरे जलवे में उसी किताब का हादी और उस्ताद बना दिया। फिर कह दिया इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन। नबी को फरमाया तुम कहो मैं सकलैन छोड़ के जा रहा हूं। यानी ये सकलैन दर हकीकत एक नूर है। जो कुरान है वो अहले बैत है, जो अहले बैत है वो कुरान। अब तो बात पहुंच गई। कुरान और अहले बैत का ताल्लुक है। एक सादा बात शायद आज से
38 साल पहले मैंने कही थी। कितनी पुरानी, तकरीबन 40 साल, मैंने दकीकन कहा है 38 साल, 38 साल के बाद पूरी हो जाए, वरना तकरीबन 40 साल पहले क़िबला मौलाना मैं गुफ्तगू किया करता था। उसका एक हिस्सा आपको मैं सुनाता हूँ, कुरान और अहले बैत का। ये सादी बात है जो मैं कर चुका हूँ, उस जैसी उसको खोल रहा हूँ ताकि आप ज़रा वाज़ेतर हो जाए। कुरान और अहले बैत, कुरान और 14 को अगर देखो ना, इनका आपस में बड़ा ताल्लुक है, इनका आपस में बड़ा राबिता है, इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। जुमला सुनिएगा, कभी आयत नाजिल होती है तो अहले बैत अमल करते हैं, और कभी ये अमल करते हैं तो आयत नाजिल होती है। बात समझ रहे हो, मेरी बात समझे हो? आपको कुरान के नाजिल होने के बाद शायद अमल करने वाले मिल जाए, नुज़ूल कुरान के बाद, नुज़ूल आयात के बाद अमल करने वाले बोलो मिल जाएंगे, शायद मिल जाए। वो भी मैं शायद कह रहा हूँ, सारे तो नहीं मिलेंगे कि पूरे कुरान पे अमल करने वाले, पता नहीं कौन कौन मिलेगा, ठीक कह रहा हूँ यहाँ। लेकिन वो दिखा जिनका अमल पहले हो आयत बाद में नाज़िल हो, फेल पहले हो आयत बाद में नाज़िल हो, उनका किरदार पहले हो आयत बाद में नाज़िल हो, उनका चलना पहले हो आयत बाद में नाज़िल हो। अगर आपकी तवज्जो हो, मैं चंद आयतें तिलावत करूं कि जिनमें अहले बैत का अमल पहले है आयत बाद में नाज़िल हो रही है, फेल पहले है आयत बाद में नाज़िल हो रही है, मेरे अहले बैत का किरदार अमल पहले है आयत बाद में नाज़िल हो रही है। इम्तिहान है तुम्हारा, पढ़े लिखो। बुजुर्गों को खुसूसन तवज्जो दे रहा हूँ, हुसैन से लेकर सारे जितने बैठे हो बड़ी तवज्जो करो। क़िबला मौलाना आपके की तो खिदमत में नहीं, बाकियों की अर्ज कर रहा हूँ, बड़ी तवज्जो करना। मैं कह रहा हूँ अमल पहले, फेल पहले, आयत बाद में नाज़िल हो रही है। शब इम्तिहान तुम्हारा, आदिल भाई तवज्जो, बोलेंगे तो मुझे यकीन होगा आप तक बात पूरी पहुंच गई है। शब हिजरत पैगंबर ने अपने बिस्तर को बाजार बनाकर जिनसे अली को पहले सजाया, वमिनन नास में यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह की आयत बाद में नाज़िल। कोई तवज्जो है? मैंने कहा मैं, आप बोलेंगे तो मुझे यकीन होगा। आप बात है कि मैंने बता दिया, शब हिजरत तक पहुंच गए हो ना, है वमिनन नास में यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह की आयत बाद में नाजिल हुई है। रसूल ने कंकरियां पहले मारी है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा की आयत बाद में नाजिल हुई है। भी तवज्जो फरमाते हुए आना, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के रसूल ने अली व बतूल का अक़द पहले पढ़ा है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान की आयत बाद में नाजिल हुई है। इन्होंने यतीमों को, मिस्कीनों को और फकीरों को खाना अल्लाह के लिए पहले दिया है। वयुतिमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा की आयत बाद में नाजिल हुई है। अमल पहले है, फेल पहले है, आयत बाद में नाजिल हो रही है। मैंने भी खत्म कर दिया है। आहले रसूल ने उसी के हुक्म से चादर ततहीर के नीचे पंजतन को पहले जमा किया है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रिज्सा की आयत बाद में नाजिल हुई है। भाई खत्म कर दी। अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के हुक्म से 18 ज़िलहिज्जा को मैदान गदीर में पालानों के मिंबर पर चढ़कर अली का बाजू पकड़कर मन कुंतु मौलाहु फहादा अलीयुल मौला पहले फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम की आयत बाद में नाज़िल हुई। क़िबला मौलाना कल मैं 40 साल पहले मैं ऐसे पढ़ता था, बड़ा अरसा हो गया, मेरे ख्याल में 30 साल हो गए छोड़े हुए, इसको पढ़ते ही नहीं हूँ। उलमा पढ़ा करते हैं आजकल, उस वक्त के भी और आज के भी पढ़ते हैं, मैंने छोड़ दिया। आज बात आ गई तो मैंने कहा चलो इन बच्चों के लिए थोड़ा सा ये समझा। भाई बात पहुंची है, असल में ये बात नहीं है, ये आपको हकीकत और मारिफत के नजदीक करने के लिए मुझे इतना पढ़ना पड़ गया है, वरना बात वही है जो मैं पहले कर चुका हूँ। मुझे तो इनकी समझ नहीं आती। मुझे देखिए, जब सामित नातिक के सामने आता है, जाहिरन तो नातिक उसे पढ़ रहा होता है। मुझे नहीं लगता जैसे नातिक सामित की तिलावत करता है, ये सामित भी नातिक की तिलावत कर रहा होता है। कहता है जो कलमे मुझ में लिखे हुए हैं, हकीकत उसकी मेरे सामने बैठी है।
आओ आओ इस कुरान को हम पढ़ें। कौन नहीं जानता कि उसका पढ़ना सवाब है? कौन नहीं जानता आप मोमिनों में से कि उसको ज्यादा पढ़ना चाहिए? कौन नहीं जानता कि माह मुबारक रमजान रबीउल कुरान, कुरान की बहार का महीना है, इसमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। कम से कम बच्चों जवानों जो कुरान पढ़े हुए हो, कम से कम एक दिन में एक जुज, एक पारा पढ़ना है, ये कम से कम है। वरना आप 5 पढ़ें, 10 पढ़ें, रोजाना पढ़ें, जितना हो सकता है तिलावत करें, इसमें शक ही नहीं है। जितना इसमें तिलावत करोगे तुम्हारी जिंदगी में बरकत आती चली जाएगी। फकत इसी महीने में नहीं, पूरे साल के लिए बरकत जमा कर लो, पूरे साल के लिए बरकत जमा कर लो। कौन नहीं समझता कि कुरान में शिफा है? जो चाहते हो कुरान में है, जो चाहते हो कुरान में है। लेकिन कुरान तन्हा फायदा नहीं देता जब तक अहले कुरान साथ ना हो, जब तक अहले बैत कुरान साथ ना हो। आज मुझे इस जुमले पे इतना लुत्फ आ रहा है आप मोमिनीन की खिदमत में ये जुमला हाज करते हुए कि मेरे 14 अहले बैत कुरान भी है, अहले बैत मोहम्मद भी है। इनको वैसे मानो जैसे इनको अल्लाह ने बनाया है। अगर ऐसे नहीं मानेंगे, तकसीर के घटा को अंधेरों में हम चले जाएंगे, फिर शैतान हमें वरगलाता हुआ अपना तो बना लेगा, अहले बैत के नहीं बनने देगा, अहले बैत के नहीं। ये है कुरान। कुरान को हमने ऐसे बड़ी बातें मैंने क्लोज कर दिया है। आगे बढ़ जाता हूं। एक रिवायत थी जो मैं सोच के आया था कि जरूर आपको हदिया करूंगा, वो कुरान की हकीकत को बयान करती है, और मैं जितनी एक मजलिस पढ़ चुका हूं वो तमहीद बन जाएगी इस रिवायत की फाहम और इस रिवायत की मारिफत हासिल करने के लिए कि कुरान है क्या। कुरान है क्या में आपने बहुत कुछ सुना हुआ है। आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया है बहुत कुछ, कुरान ने खुद अपने बारे में भी फरमाया है। दुआ करें, बंदे नाचीज ने एक किताब लिखी है इरफान कुरान की बिला, वो उसका एक हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, खुदा करे छप कर आ जाए। तो हमने उसके पहले हिस्से में बयान किया है कि कुरान ने खुद अपने बारे में अपने आप को क्या कहा है, तो ये मैं मुकम्मल कर चुका हूं, इसको लिखा जा चुका है। खैर इंशाल्लाह कभी तो आपके खिदमत में पहुंच जाएगी। इसी तरह अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने इनके बारे में क्या फरमाया है। वो जो एक जुमला, एक तजल्ली, भाई साहब, एक जुमला जो जलवागर है, जो कुरान की हकीकत को बयान करता है, आपको अर्ज कर रहा था, बड़ी तवज्जो फरमाइएगा। वो मैं आपको एक आधी सतर का जुमला है, वो कुरान की हकीकत को, पूरी वाकईयत को खोल कर बयान कर रहा है। बस उसी को हदिया करता हूं और मजलिस मेरी खत्म है। तवज्जो है आप साहिबान की। कुरान क्या है? इस क्या है का जवाब नातिक कुरान अली ने भी दिया, कश्शाफुल हकायक लिसानुल्लाह नातिक मेरे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने भी दिया। दोनों इमामों ने बयान फरमाया है। मैं आपको हदिया किए जाता हूं। दोनों का फरमान एक जैसा है, एक लफ्ज का फर्क है, फर्क नहीं है, बाकी आपका हदिया कर दो। कुरान कौन क्या है? फरमाते हैं लक़द तजल्लल्लाहु फी कलामिही लिखल्किही वलाकिन्नहुम ला यशऊरून। किबला मौलाना, कुरान की डेफिनेशन और हकीकत के बयान करने में ये कलमा गौरारुर रिवायात में से है, यानी जो कुरान का तारुफ करवा रही हैं रिवायतें, उसमें से दरख्शंदा तरीन रिवायत है, ताबिंदा तरीन रिवायत है। ये हकीकत कुरान को बहुत ज्यादा रोशन करने वाला फरमान है। कुरान क्या है? कुरान की हकीकत क्या है? मेरे मौला अली भी फरमा रहे हैं, सादिक भी फरमा रहे हैं। इरशाद क्या फरमा रहे हैं? यानी उन दो से नकल हम तक पहुंची है, बाकी 14 समझ लें, 14 के 14 इरशाद फरमा रहे हैं। और जब 14 फरमा रहे हैं वही तो अल्लाह का फरमान होता है। गौर ही नहीं किया हमने, इमामों को मानना इस तरह है, जब 14 फरमा रहे बस वही अल्लाह फरमा रहा है, क्योंकि ये अल्लाह की जबान है, ये अल्लाह के तर्जमान है, ये उसके इरादे को बयान करते हैं, ये उसकी मर्शियत की तर्जमानी फरमाते हैं, ये उसके तर्जमान है। जब ये फरमा रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ शानुहु जल्ल जलालुहु इरशाद फरमा रहे हैं, फरमाते हैं लक़द तजल्लल्लाहु। मुझे देखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ शानुहु जल्ल जलालुहु इस कदर अजल व अज़ीम है कि हम खल के कूता और हम खल के पस्त में, हम घटिया मखलूक में खुद नहीं आ सकता, क्योंकि वो नूर है, फौक नूर से भी बुलंद है, वो नूरुल अनवार है, वो मब्दा नूर है। यहाँ पर हमारे सामने जिस्म जिस्मानियत में बोल तवज्जो करना नहीं आ सकता तो नहीं आ सकता, लेकिन हम बंदे हैं, हम उसकी मखलूक है, हमने उस तक पहुंचना है, हमने उससे बातें करनी है, हमने उससे कुछ मांगना है, हमने उससे अपना राज़ नियाज़ करना है। तो उसने फरमाया लेकिन मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन एक काम मैंने किया, लक़द तजल्लल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला
अपने नूर को भेजता है, अपने जलवे को भेजता है, अपनी तजल्ली को भेजता है, अपने ज़ुहूर को भेजता है। ये सारे अनवार मेरे अल्लाह के ज़ुहूर है, उसने अपने ज़ुहूर को भेजा। अच्छा, वो ज़ुहूर किस में भेजा? बाकी चीजों को छोड़ दे, मुझे देखिए, फी कलाम ही, अल्लाह अपनी कलाम में जलवगर होता है लिखल्क ही, अपनी मखलूक के लिए। दूसरी रिवायत में है लिबाद ही, अपने बंदों के लिए। बंदे ही अल्लाह के आप है, हकीकी मखलूक भी अल्लाह के आप है। आप मोमिनों की वजह से लोग दूसरे भी इंसान नजर आते हैं। किबला मौलाना आके मीट लिया। मैं ये जुमला कह के उतर जाऊं, अशरे जितनी मजलिस में इसी जुमले में पड़ गया हूं। फिर एक मरतबा दोहराता हूं, मुझे कसम है अल्लाह की जात मुतआलिया की, तुम मोमिनीन साहिबान विलायत की वजह से बाकी इंसान नजर आते हैं। हकीकी इंसान तुम हो, तुम अली वालों की वजह से बाकी मुसलमान नजर आते हैं। तुम हकीकी मुसलमान हो। बड़ा ये जुमला मेरा वायरल हुआ है, मैं इसको खोल नहीं रहा आपके लिए, कभी खोलूंगा। अगर आपका मुकद्दर हुआ, फकीर आ गया तो आपको तब्यीन कर दूंगा। ये वाकईयत आपको मैं बयान कर रहा हूं, आप ही है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के लिए अपनी कलाम में खुदा जलवगर होता है, खुदा रोशन होता है। तमसील आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, जैसे सूरज की रोशनी किरणों से वो दिन में जलवगर होता है, सूरज जलवगर होता है। अपनी किरणों और शुआओं के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला अपनी कलाम यानी कुरान के जरिए से बंदों के लिए जलवगर है। आप समझ में आ गई? यानी अल्लाह का कलाम, ये 30 पारे, ये 114 सूरतें, ये 6666 आयात, मशहूर कौल के मुताबिक जितने हुरूफ, जितने कलमात हैं, ये समझ ले वजूद मुकद्दस ज़ात मुतालिये गैबुल हुजूब, जिस तक कोई भी नहीं पहुंच सकता, उसकी किरणें हैं, उसके जलवे हैं, उसकी तजल्लियात हैं। ये पूरा का पूरा कुरान और आयतें उसकी तजल्लियात हैं। तो अल्लाह फरमाता है, मुझ तक पहुंचना चाहते हो, मुझे देख नहीं सकते, मैंने अपने जलवे भेजे हैं अपनी कलाम के जरिए से। वलाकिन्नहुम ला यशउरून, अक्सर लोग ये शऊर नहीं रखते कि लफ्जों के पीछे उसकी सिफात झलक रही है, सिफात के पीछे उसकी जात है। ओए होए होए होए, किबला मौलाना, मैं आपके मजमे और इन आपकी मेहनत जो आपने इन पे ऊपर की है, एतमाद करके इतनी बड़ी बात में हदिया कर गया हूं। आपको समझ में आई है? मैं मौला ने फरमाया क्या है? मौला कहना चाहते हैं, तुम इस कुरान के लफ्जों को वैसे पकड़ो, वैसे थामो जैसे हमने कहा है। मौला आपने कैसे कहा है? मुझे देखना, वैसे थामना जैसे उन्होंने फरमाया है। वो क्या है? फरमाते हैं, दिल में हमारी विलायत हो, दिल में हमारे दुश्मनों का बुग़्ज़ हो। अब जो कुरान को मानोगे, ये वैसे मानना है जैसे हम चाहते हैं। हाय हाय हाय। तो बस ऐसे जो तुमने थाम लिया। अच्छा मौला, फिर क्या हुआ? कहा, ये जो लफ्ज़ें हैं ना, ये तुम तक पहुंचाई है, ये आप तक पहुंचाई है हमने, इनको थाम लो। तो मौला करें क्या? फरमाते हैं, खुदा इनमें जलवगर होता है, ये खुदा के नूर की किरणें हैं। गौर ही नहीं किया। कल मेरा जुमला संभालना, हाँ, कोई शैतान वसवसे न डाल दे। मोहम्मद ही कह गया था कि ये लफ्ज खुदा है। मैं नहीं कह रहा ये लफ्ज खुदा है, ये कुरान खुदा है। कह रहा हूं ज़ात वाजिब मुतआलिया, उसके नूर की किरणें हैं। अब समझ में आ गई ये बात ना? ये तो है ना, अल्लाह नूर है सही या नहीं है? बोलो, अल्लाह नूर है ना? अच्छा, जो बंदा अल्लाह को अपना अल्लाह मानता हो, है कि बोला, और अल्लाह को नूर न मानता हो, वो भी बंदा है। और ही नहीं किया, वो कोई बंदा है। अच्छा भाई, अल्लाह तो नूर हो गया, शुक्र है खुदा का, ये नूर मान गया। मेरा तजर्बा है, मैं लोगों से मिलता जुलता हूँ ना, मुझे पता है, बाद लोग यकीन मानी बात है, मुसलमान है, लेकिन अल्लाह का नूर होने में भी उनको शक है। गौर नहीं करवा रहे। तो जब थोड़ा सा समझा, हाँ ठीक है कि बोला नूर है, चलो भाई अल्लाह तो नूर हो गया। ये कुरान जो अल्लाह की किताब और अल्लाह का कलाम है, ये नूर है या नहीं? बोलो, नूर है ना? खुद नस है, कुरान है कि ये नूर व किताब भी, ये कुरान क्या है? ये भी नूर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह भी नूर, ये भी नूर। समझाने के लिए, जैसे सूरज भी नूर, उसकी किरणें भी नूर।
خود سورج تو زمین سے بھی بہت بڑا ہے، وہ تو ہمارے پاس آ نہیں سکتا، تو اس نے کرنیں بھیجی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر من ان یوسف، اس کی کبریائی کی ایک جھلک بھی ہم نہیں دیکھ سکتے، اس نے اپنے نور کی کرنیں آیات اور قرآن کی شکل میں ہمیں دی ہوئی ہے۔ ایک لذت والا جملہ ہے، اللہ کرے میں آخری جملہ وہی ہوگا میرا، میں وہ آپ تک پہنچا سکوں، مجلس میری پوری ہو جائے گی۔ بھی بڑی توجہ کیجئے کہ یہ مثالیں دے رہا ہوں اس جملے کو آپ تک کنورٹ کرنے کے لیے اور ڈیلیور کرنے کے لیے کہ آپ تک وہ پہنچ جائے۔ بھائی خدا نور ہے، اس کا کلام قرآن بھی نور ہے، اور یہ آیا ہوا ہے حرفوں میں، ملفوظ میں، جو بھی آپ کہہ دیں، ہیں ریٹرن میں آپ کہہ دیں، لفظ بولنے میں آپ کہہ دیں، جو بھی آپ کہہ دیں، یہ ہمارے پاس آیا ہوا ہے، یہ بھی نور ہے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ کا نور ہے، یہ خود اتنا پاک ہے یہی لفظ کہ آپ بغیر پاک ہوئے اسے چھو بھی نہیں سکتے۔ یہ اللہ کا نور ہے، بس اللہ کا نور اتنا عظیم ہوتا ہے کہ ہم خاکی پاک ہوئے بغیر اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، مس نہیں کر سکتے، اس کو چھو نہیں سکتے۔ تو یہیں سے یہ ایک علامت ہے کہ یہ اللہ کا نور ہے۔ جو بھی اللہ کا ہوتا ہے اور وہ بھی نور ہو جائے، کوئی خاکی اس کے نزدیک نہیں جا سکتا جب تک طہارت کے ذریعے سے نوری نہ بن جائے۔ جب تک وہ طہارت کے ذریعے سے نوری نہ بن جائے، اس لفظ کو بھی نہیں چھو سکتے۔ بات میں ختم کر رہا ہوں۔ بس ہوا کیا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ ان قرآن کی لفظوں کے پیچھے یہ لفظ نور ہے، ان کے پیچھے یہ جو معانی ہوتے ہیں وہ اللہ کے کمالات اور صفات کو بیان کرتا ہے، وہ اللہ کے اسماء کو بیان کرتا ہے۔ اسماء لفظی سے پیچھے اس کی صفات حقیقیہ ہے، حقیقت علم ہے، حقیقت قدرت ہے، حقیقت ولایت ہے، یہاں تک کہ اس کی ذات متعالیہ اللہ تبارک و تعالی عز شانہ جل جلالہ، جس کے لیے مختلف لفظیں کہی جاتی ہیں، میں ادھر نہیں جا رہا، وہاں تک ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا، اوپر سب سے اوپر، فقط لفظ ہم اوپر کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ کتنا بلند اور کتنا اوپر ہے یہ ہمیں کسی کو بھی سمجھ نہیں آ سکتا۔ وہ ذات متعالیہ ہے، واجب اللہ تبارک و تعالی ہے۔ پھر یہ تنزیل ہونا شروع ہوا، نور تنزیل ہوتا ہوا، تنزیل ہوتا ہوا، نازل ہوتا ہوا، نازل ہوتا ہوا، ہمارے پاس ان لفظوں میں آ گیا، ان حرفوں میں آ گیا، اس کلام میں آ گیا۔ اللہ نے فرمایا اس کلام کو تم تھام لو، مجھے دیکھو، اس کلام کو تم تھام لو۔ اگر اس کو تم نے تھام لیا، کیونکہ اس کا دوسرا حصہ، دوسرا سرا مجھ ذات اللہ سے متصل ہے، اس کو پکڑو گے مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ اب توجہ کو، اس کو پکڑو، یعنی یہ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، اس کو پکڑو گے مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ اور اس کی دوسری یہ ہے لفظوں والا صامت قرآن، دوسرا ہے وجود والا ناطق قرآن، اور ان کو امام بنا کر 14 کی شکل میں ہم سے بھیجا۔ فرمایا قرآن صامت سے تمسک ان 14 کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جیسے یہ لفظ اس کا نور ہے، ادھر ذات سے متصل ہے، یہ 14 بدن میں قرآن کے لفظوں کی طرح ہے، ادھر ذات سے متصل ہے، اور ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے۔ جس جملے کے انتظار میں تھے وہ میں جملہ کہہ رہا ہوں۔ اس ماہ رمضان میں اس کی رحمت کو دیکھیے، اس ماہ رمضان میں اس کی رحمت کو دیکھیے، وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا عظیم ہے۔ ہم بیچارے، اس کی بیچاری خاکی مخلوق اس تک نہیں پہنچ سکتے تھے، تو اس نے کہا ہے میں چاہتا ہوں میں تمہارے درمیان رہوں، تو کیسے رہوں؟ میں نے اپنے نور کو لفظوں میں ڈھال کر تمہارے ہاتھ میں بھی دے دیا، تمہاری زبان پر بھی دے دیا، تمہارے دلوں میں بھی اتار دیا۔ غور کرو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یعنی جس کے گھر میں قرآن ہے گویا کہ اللہ کا نور رکھتا ہے، جس کے دل میں قرآن ہے یعنی اللہ کا نور رکھتا ہے۔ اور کسی کے گھر اور دل اور ذہن اور دماغ اور زبان پر قرآن صامت وہی ہوتا ہے جو ناطق پر ایمان کے ساتھ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں تک آپ کی بات میری سمجھے؟ بس جب بھی آپ قرآن پڑھنے بیٹھے نا، اپنے آپ کو ادھر سے متصل دیکھنا، دیکھو ادھر متصل ہو رہے ہیں۔ لہذا جب میں تفسیر کے مقام پر لیکچر میرے ہوتے ہیں تفسیر کے، تو اس میں بھی یہی کرتا ہوں کہ بولا مولانا میرا طریقہ تفسیر یہی ہے کہ قرآن کو اس طرح تفسیر کرو
کہ جاتے جاتے لفظوں کے ماورا جاتے 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 ذات حق تک پہنچا، کیونکہ یہ اللہ نے اس طرح فرمایا، ہمارا عمل بھی اسی طرح ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ ہم کیا بپا کیے ہوئے ہیں؟ سنو میرا جملہ، ہم نے بپا کیا کیا ہوا ہے؟ بیٹے ادھر آؤ، یہ اٹھا جاؤ، صلوات پڑھیے گا ایک بابا دے بولا۔ یہ بندہ ناچیز پڑھ رہا ہوں، آپ سماعت فرما رہے ہیں، اس کو مجلس کہتے ہیں نا؟ ایسے ہی ہے نا، مجلس ہے نا؟ اور پھر یہ منسوب ہے مولا حسین سے، ہونا بھی چاہیے۔ ذکر جس کا ہونا قبلہ، بس اسی کو مجلس ختم کر رہا ہوں۔ یہ مجلس میں قرآن والی بات ختم ہوگی، اس کو سنیے گا، متصل ہے، مجلس ہے، مجلس کو آگے نسبت دے دیتے ہیں۔ ہم عموماً کیا کرتے ہیں؟ مجلس حسین علیہ السلام بپا کرتے ہیں، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ یہی چاہتا ہے، اللہ کا رسول ہم سے یہی چاہتا ہے، 14 یہی چاہتے ہیں، حسین کی اماں ہم سے یہی چاہتی ہے، ٹھیک ہے؟ مجلس ازائے حسین علیہ السلام، یہی بپا ہوتی ہے۔ آپ نے 3 مجلسیں حقیر سے اس کی عظمت میں سماعت فرمائی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک بہت بڑے فقیہ اہل بیت کا سہارا لے کر ہم نے آپ کو سنایا ہے۔ اب مجلس ازا کی ایک اور عظمت بتا کر آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، مجلس کے اوپر ختم ہے، توجہ کیجئے گا۔ یہ مجلس ہوتی ہے، نسبت کس کے ساتھ ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ توجہ کیجئے گا، ذکر مجلس حسین میں میرے بزرگوں کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا، اس کی توحید کا، بولتے آؤ میرے ساتھ۔ ذکر کس کا ہوتا ہے؟ قرآن کا، ٹھیک ہے؟ مجلس امام حسین کی ہے، ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ بولو، قرآن مجید کا۔ مجلس امام حسین علیہ السلام کی ہے، ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ کا۔ مجلس امام حسین علیہ السلام کی ہے، ذکر اس کی توحید، اللہ کی توحید کا، اللہ کی رسالت کا، جو اس نے نبی بنائے ہیں۔ انبیاء کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، نبیوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، نبوت و رسالت کو ہم بیان کرتے ہیں، ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ مجلس مولا حسین کی، ذکر امامت کا، بولتے آؤ میرے ساتھ، چلتے آؤ۔ مجلس سید الشہداء علیہ السلام کی، ذکر ولایت کا۔ مجلس حضرت سید الشہداء کی، ذکر اللہ کے اسماء کا، صفات کا، عدالت کا۔ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ مجلس میرے مولا حسین کی، توجہ کیجئے گا، ذکر ہم قیامت کا کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی اب میرا ساتھ ضرور دینا، مجلس ہم کربلا کے والی کی کر رہے ہوتے ہیں، ذکر نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، خمس کا، جہاد، ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ مجلس امام حسین علیہ السلام کی ہے، دین کے اخلاق بیان ہو رہے ہیں۔ مجلس امام حسین علیہ السلام کی ہے، دین کے جزئیات کو، اس کے افکار کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک بھی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ مجلس ادائے امام حسین کی عظمت کتنی ہے، عزت کتنی ہے، مقام کتنا ہے۔ اللہ نے، میرا جملہ یاد ہوگا وہ 3 مجلسوں میں، جن کے ذہنوں میں ان کو تو بڑا مطلب سمجھ میں آئے گا، لطف بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا، اور باقی بھی اگر توجہ میں ہے بات لے جائیں گے میری۔ تو مجلس ادائے حسین علیہ السلام، میں نے کیا کہا تھا؟ وہ صائبہ ہے، وہ نظام الہی ہے، وہ آسمان ہے، جس مجلس ادائے حسین کے سائے میں اللہ کے دین کے اصول بھی بچے ہوئے ہیں، دین کے فروع بھی بچے ہوئے ہیں۔ آؤ مجلس حسین میں۔ اس لیے شیخ جعفر شوستری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجلس ادائے حسین ظاہراً ایک عبادت ہے، مجمع لجمیع العبادات، جبکہ تمام عبادتوں کا نقطہ اجتماع ہے مجلس ادائے حسین۔ یہ اتنی بڑی مجلس ہے، اس کی عظمت آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے۔ دوسرا مقصد کیا ہوتا ہے یہ آپ نے سمجھ لیا۔ ہم عزاداروں کا، بیچاروں کا مقصد یہی ہوتا ہے، ہم جا رہے ہیں حسین کی مجلس پر، ہم مولا حسین کی تعزیت پیش کریں گے، روئیں گے اور تعزیت پیش کریں گے اس کی دکھی ماں حضرت زہرا کو۔ کوئی دنیا سے چلا جائے، آپ اس کو تعزیت کرنے جاتے ہیں، وہ جس کو آپ تعزیت کرنے جاتے ہیں، بزرگوں، نام مجھے نہیں آتا لیکن توجہ آپ کی کا کمال توجہ ہے، میں آپ کے لیے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کیونکہ بزرگ ہیں، یہ بات وہ زیادہ احساس کرتے ہیں، آپ سارے احساس کرتے ہیں، بزرگوں کا تجربہ زیادہ ہے۔ بھئی توجہ کرو، اگر کوئی وفات پا جائے، باقی ہم تم لوگ اس گھر میں جاتے ہیں، اس کو تعزیت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں افسوس ہوا، افسوس کرنے جا رہے ہیں، جو بھی جملہ آپ بولتے ہیں، افسوس کرنے جا رہے ہیں۔ تو وہ جو وہاں بیٹھا ہوتا ہے، ہماری ثقافت میں یہ ہے کہ ایک فرش ہوتا ہے اور ایک شخص ہوتا ہے یا چند اشخاص ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے یہ اس مر جانے والے کے وارث ہیں۔ ایسا ہے نہیں؟
वो उस फर्श सोग के वारिस है और हम जाकर उनको ताज़ियत पेश करते हैं। इमाम हुसैन जैसी शख्सियत शहीद हो गई इतनी बेदर्दी और बेएहतरामी से, जिसकी ताज़ियत अभी तक भी अदा नहीं हुई है। तो मजलिस अज़ाए हुसैन वो सोगवारी का एक फर्श है, ठीक है, सोगवारी का एक फर्श है। जब ये मजलिस होती है ना, जैसे मैयत के वारिस नहीं बैठते वहां पर, अल्लाह पाक की कसम, जहां पर भी मजलिस अज़ाए हुसैन होती है ना, सारे 14 आ जाते हैं यहाँ पे। क्या बात है आपकी, बात मुंतकिल मैंने की है, आपके आंसू शुरू हो गए। वो तशरीफ लाते हैं और कोई इतने करीम हैं, जो जैसा भी है ना उसको गले लगा के कहते हैं आया तो हमारे हुसैन को रोने है। इसको हमारे प्यासों का दर्द है, हमारे जवानों का दर्द है, हमारे मस्तूरात का गम है, ये गम लेकर आया है। बड़ा एहतराम करते हैं। लेकिन उलमा इस तरह फरमाते हैं, तीन शख्सियतें इस फर्श अज़ाए इमाम हुसैन की वारिस है, जिनको हमें पुरसा देना होता है। मैं बात पहुंचा सका हूं आप तक, उनको पुरसा देना होता है। पहली शख्सियत का नाम लेकर रहा हूं, अल्लाह पाक की कसम, वो इस मजलूम का बाबा अली है, वो इस मजलूम का बाबा अली है। दूसरी शख्सियत, वो इस मजलूम की दुखी मजलूमा माँ है। एक आलिम दीन हमारे उस्ताद यही कहा करते थे, जब भी मजलिस होती है गोया कि अली मर्दों में बैठते हैं, हजरत ज़हरा मस्तूरात में बैठती है। जब आप रोकर जाने लगते हैं, अली जैसा अजीम इमाम खड़े होकर फरमाते हैं, एक एक मोमिन को, अज़ादार रोने वाले को फरमाते हैं तेरा शुक्रगुजार ओ तू मेरे प्यासे बेटे को रोने आया। और जब मस्तूरात जाने लगती है, रसूल की अकलौती जख्मी बेटी खड़े होकर फरमाती है, ऐ मोमिना रोने वाली तेरी शुक्रगुजार ओ तू उस मेरे बेटे को रोने आई जिसकी लाश पे बहनों को नहीं रोने दिया गया, उनको भी नहीं रोने दिया गया। और सबसे बड़े वारिस है साहिबुज़्ज़मान, वो अपने दादे की मजलिस में तशरीफ लाते हैं, हम इनको पुरसा देते हैं इसकी नीयत से आया करे। अगर मैं जिक्र खुदा है, जिक्र अहले बैत है, वो भी पाक है, हस्तियां भी पाक है, तो हमें पाक होकर ही आना चाहिए, हमें पाक होकर ही आना चाहिए। और वो दो पाकीज़गियां हैं, एक बातन की पाकीज़गी, एक जाहिर की पाकीज़गी। बातन की पाकीज़गी है खुलूस, इखलास, फकत दिलों के बादशाह हुसैन के लिए तशरीफ लाया करो, किसी के लिए नहीं। सैयदा ज़हरा के लिए तशरीफ लाए, इमाम ज़मा के लिए तशरीफ लाए, मौला अली के लिए 14-12 पदर के लिए तशरीफ लाते हैं आप। और ऐसा ही है, ये दिल की पाकीज़गी है, दिल में कोई और ना हो। ज़ाहिरी पाकीज़गी क्या है? वुजू करके तशरीफ लाओ। ये बात आपने सुन, इसी मजलिस में खत्म हो चुकी है। यही पैगाम था जो मैंने आपको देना है। ज़ाहिरी पाकीज़गी क्या है, क्या करना है? मजलिस आज़ा को बावुजू सुनना है, बावुजू आज़ादारी हमने करनी है, इसको हमने अंजाम देना है। बस भाई बड़ी तवज्जो करो, जिस चीज का तुम एहतराम करो और उसका वारिस बैठा हो, उसको आप बड़े प्यारे लगेंगे। मैं बात पहुंचा सका हूँ? जब बीवी देखेगी ना मेरे हुसैन की मजलिस में इतने एहतराम से आ रहा है, वैसे था लेकिन मजलिस में वुजू करके आ रहा है, फिर कहती है बाबा रसूल मैं शफाअत करती हूँ, जब तक ये जन्नत में नहीं जाएगा रोने वाला, मैं नहीं जाऊंगी। फिर आप बीवी को बड़े प्यारे लगते हैं, उसके बेटे की मजलिस का एहतराम करते हैं। आखिरी जुमला इस मौजू का और बात खत्म हो गई है। भाई तवज्जो कीजिएगा, आपने नमाज पढ़ी, मगरिबैन अदा किए, मसलन मिसाल दे रहा हूँ, मगरिबैन पढ़िए और फिर मजलिस आज़ा हुई, आपने वुजू करने लगे। ये छोटे बच्चे होते हैं ना किबला, उनमें तजस्सुस की आदत होती है। छोटे बच्चे 5 साल के, 8 साल के, 10 साल का भी हो सकता है, वो आपसे पूछेगा, मैं आपकी तरबियत के लिए, इससे बड़ा जुमला नहीं है, वो आपसे पूछेगा बाबा, चाचा, भाई, बुजुर्ग, जो भी उससे ताल्लुक है, रिश्ता है, आप वुजू कर रहे हैं, आपने तो नमाज पढ़ ली है। क्योंकि उम्र हमारे जहन में ये होता है कि वुजू करते हैं नमाज पढ़ने के लिए, आपने तो नमाज पढ़ ली है,
तो बाबा अब ये वुजू किस लिए कर रहे हो? शबर भाई तवज्जो करना, ये वुजू क्यों कर रहे हो? चाचा ये भाई वुजू क्यों कर रहे हो? भाई ये वुजू क्यों कर रहे हो? अजीज दोस्त ये वुजू क्यों कर रहे हो? उस बच्चे के सर पे हाथ रखो, माथा चूमो, कहो बेटा वो वुजू था नमाज के लिए, ये वुजू है उसकी मजलिस के लिए जिसने मजलिसों से नमाज बचाई हुई है, जिसने मजलिसों से खुदा की याद बचाई हुई है, जिसने अपने जिक्र से अल्लाह का जिक्र बचाया हुआ है, ये उसकी मजलिस के लिए वुजू कर रहा हूँ। वादा करता हूँ, मेरा तजर्बा है मोमिनीन को जिन्होंने भी अमल किया है, 40 मजलिसें कम से ज्यादा से ज्यादा चलो कह देता हूँ, वरना 10 मजलिसें भी बावजू सुनो, देखो मारिफत में नूरानियत में इजाफा किस तरह होता है। वजह असल में एहतराम है साहिब अज़ा का। मैं आज तवक्को से ज्यादा पढ़ गया हूँ, 50 मिनट हो गए हैं। परवरदिगार आलम हम तमाम को मारिफत अहले बैत नसीब फरमाए, मारिफत कुरान नसीब फरमाए, मारिफत अहले बैत नसीब फरमाए, मारिफत साहिब ज़मान नसीब फरमाए, मारिफत मजलिस अज़ा अता फरमाए, मजलिस अज़ा को वैसे बपा करने की तौफीक अता फरमाए जैसे वो चाहते हैं। और बिल्कुल वाज़े कह रहा हूँ, हमें बावुज़ू अज़ादारी की तौफीक अता फरमाए, पाक साफ खालिस दिलों के बादशाह हुसैन के लिए आने की तौफीक अता फरमाए। बस आज के बाद आप नहीं, जो कोई ऐसे इक्का दुक्का जहन में मजलिस अज़ा बपा हो और दायराए मजलिस अज़ा से बाहर होते हैं, देख लें कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, कितना बड़ा घाटा आ रहा है, कितना बड़ा जिंदगी का लॉस आ रहा है कि हम ऐसे मुफ्त में गवा रहे हैं। बैठे रहो तवाफ का सवाब मिल रहा है, बैठे रहो हज का सवाब मिल रहा है, बैठे रहो अपने आप को मैदान अरफात में समझो, इससे बड़ी शहादत क्या होगी। ये करम है हुसैन का कि उसने अपने जिक्र से ये सब शहादतें एक ही जगह पर हमें अता फरमा दी है। मौला साहिब ज़मान राजी हो जाए, एक मर्तबा बहुत बुलंद आवाज से कहो, या साहिब ज़मान, इससे ज्यादा जोर से, या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, अज्जल अला